Welcome back to the next video. In this video, we will continue the next 5 questions that we have to do. Let's start with the first question that we have. That is, consider the following statements. Consider following statements about the about a rhino stylish. Sorry for mispronunciation. So, yeah. Let's see. It talks about foxtail orchid. There is a translation. This is a scientific name that is given of the orchid, and this is the normal name that we have. So here it says orchid, and here it says orchid. That is epiphytic orchid. So this seems kind of true. So by that logic, we can say that this is correct, and it is endemic to Northeast. Endemic is a red flag term. It's a term that is used by UPSC in PYQs, and usually in PYQs it is noticed according to a trend that it is wrong. So this is wrong. It is a state flower of Arunachal Pradesh and Assam. See, if we look at the options, we see that option C is wrong, right? Option A में only 3 भी cancel हो गया, तो फिर हमारे पास A and B बचा. So either only 1 is correct or 1 or 3 is correct. We know that orchid, according to the knowledge that we have around the geography and environment of Arunachal Pradesh and Assam, we could say that yes, orchid is something that is found in both Arunachal and Assam, and it is also a street flower. So that is by knowledge. Aptitude cannot work here, but with aptitude we can solve these two. We can eliminate these two options, and we can come to this. Next one, what we have here is about Moidams. Moidams was a quite popular topic that was there in the current affairs. So it is basically a current affair based topic, but they have made it a bit tricky by making complementary statements. If we read, we can see that first statement, they say that they acted as army fortresses. This is wrong. These were actually burial grounds. So first is wrong, second is wrong. Then they were recreational centers for nobles and royals and nobles. That is also not true. By that logic, we can come to by elimination of the options we can come, but this is a pure knowledge and current affair base that was there in the current affairs. And if we look at it, we also see that 1 and 4 is kind of complementary. Army fortresses and battle drill centers of royals and nobles. So 1 and 4, but in the option there is nowhere mention about 1 and 4. So these two, 1 and 4, cannot be correct together, but they can be wrong together because both of them are complementary to each other. So that we know. And burial grounds, whereas recreation center, these are contrasting terms. That is, the burial ground is the correct answer. By that logic, we have this. Now let's move on to another current affair based question. करंट अफेयर्स बोलो या फिर PYQ का जो एप्टीट्यूड रिपीट है, we can say that because it's actually an aptitude repeat. Let's read the question first. At the United Nations Ocean Conference held in June 2025 in France, the Forest, Food and Agriculture Organization of the United Nations demonstrated its leading voice in marine and ocean issues, especially on sustainable fisheries and aquaculture for resilient livelihood and blue transformation. Which of the following combinations about 4 betters was proposed by Food and Agriculture Organization for blue transformation is correct? अगर हम चारों ऑप्शन देखें, हमें देखने को मिल रहा है पहला और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज यहाँ पे बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर ओशन. सेम, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट, बट बेटर ओशन और बेटर ओशन और लाइफ में डिफरेंस है. ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो आंसर इन दोनों में से एक ही होगा. एंड प्लस करंट अफेयर बेसिस में हम जाने, एंड ऑल्सो द एप्टीट्यूड बेस हेयर वी कैन से दैट एप्टीट्यूड क्या बोलते हैं, बी ब्रॉडेस्ट ऑप्शन, मोर इंक्लूसिव, बेटर ओशन या बेटर लाइफ वुड बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट तुकाराम. Turkana. Sorry for that. It's actually Turkana. तुर्काना है. ये
2025 में 2024 में पूछी गई है. They have asked about this and they have been asking about Africa and mapping पूछ रहे हैं. So this was kind of asked question. Let's see, it is the largest desert lake in the world. That is actually true. Knowledge wise भी देखिए, yes. The lake is situated in South Sudan. That is not true. वो Kenya में present है. This is wrong. By that logic, we have to see the third one. It is listed as UNESCO World Heritage Site and also referred as JDC. See, knowledge wise, so I did not know that whether it is known as JDC or not, but it's a very unique term. Unique term है जो गलत होगा तो मतलब पेपर में ही गलत, मतलब this is something that they cannot make up. So by that logic, we can say that हमारा ऑप्शन बनता है 1 and 3 is correct. Right. इसका लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन would be, which of the following is the first plan Vivo certified reducing emissions from deforestation and forest degradation project in India? इसका आंसर like it's a very difficult question, means like if somebody have read in the current affairs that is there, but ये chronology wise पूछ रहा है, first one, not the recent one but the first one. That's where the tricky part comes. So अगर देखा जाए, बट हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की बात करता है, ये खासी की बात करता है और ये सिक्किम की, कहीं ना कहीं तीनों के तीनों रिलेटेड है. उत्तराखंड इज सेपरेट, ये कहीं वेस्ट साइड में आते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट साइड. एंड इन दोनों में वी कैन कम बैक टू सिक्किम भी दूसरे साइड हो गया, नॉर्थ ईस्ट, और ये स्पेसिफिकली नॉर्थ खासी हिल्स कम्युनिटी रेड प्रोजेक्ट. सो इन दोनों में 2 ऑप्शन एलिमिनेशन का आता है. कैनॉट से रियली कि इंक्लूसिव अप्रोच लें या फिर हम लोग बोलें, बिकॉज इसमें आंसर्स एप्टीट्यूड वाइज नहीं आ सकता until unless we have the knowledge of this, right? So आंसर एक्चुअली इसका खासी है. दिस इज देयर, ये 2013 में था, 13 में बना था. दिस इज knowledge based question. So this was about solving the question. Let's know little bit about these. हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो हमें ये पता चलेगा. जो फॉक्सटेल ऑर्किड है, एज आई सेड कि ये स्टेट फ्लावर है अरुणाचल का एंड असम का, एंड ये एपिफाइटिक ऑर्किड्स है. एपिफाइटिक्स आर दोज जो वो नहीं चढ़ते, रस्सी चढ़ते, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ग्रेप्स लगाते हैं तो फिर वो कुछ ऐसे चढ़ जाते हैं. तो दीज ऑर्किड्स आर समथिंग, जैसे अगर ब्रांच है, अगर ये ब्रांच है तो इसमें ऐसे निपटे से होंगे, एंड देन यहाँ पे यू कैन सी दी ऑर्किड. राइट, दिस वुड बी, दिस इज व्हाट एपिफाइटिक ऑर्किड बोला जाता है. ट्री पे और ट्रंक ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं, फिजिकल सपोर्ट चाहिए होता है, एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द एयर रादर देन बीइंग पैरासिटिक. दे आर नॉट पैरासिटिक, दे आर म्यूचुअलिस्टिक बोल सकते हैं. ये नॉट एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट, ये नेटिव रेंज स्पैन्स अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, लाइक चाइना में भी, नेपाल में भी, श्रीलंका. तो चाइना, नेपाल, श्रीलंका में पाए जाते हैं. इवन इन थाईलैंड, मलेशिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और ये अंडमान और निकोबार्स में भी पाए जाते हैं, 15+ अदर स्टेट्स में भी. नॉट एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट. ये वाला पॉइंट जो है इन्होंने अच्छा खेला है. दिस दे हैव आस्क्ड दिस. अबंडेंस और एंडेमिज्म का ट्रैप इन्होंने पहले भी पूछ चुका है इन PYQs. दे हैव आस्क्ड दिस. लेट्स मूव ऑन टू द 37th वाला क्वेश्चन. देखो, दिस मोई डैम्स के बारे में इट वॉज देयर इन करंट अफेयर्स. इट वॉज देयर फुल्ली, लाइक 2025 का पूरा ईयर था व्हेन देयर वॉज टॉक अबाउट करंट अफेयर्स. एंड इसमें इसके बारे में थोड़ा देखा जाए, ये बिल्ड किसने किया? बिल्ड बाय ताई अहोम किंगडम, सॉरी किंगडम ने बिल्ड किया है. और ये जो मोई डैम्स जो होते हैं वो चाराई डियो असम में पाए जाते हैं. रॉयल ब्यूरल, माउंट ब्यूरल्स बोले जाते हैं, ये ब्यूरल्स होते हैं. एंड क्या बोलते हैं इसको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताइए. 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये. और इसके बाद यहाँ पे जैसे they contain remains of kings, royals and nobles along with the graves, food, jewelry,
insignia, food, and even horses and elephant in some, confirming that these are confirming their function as burial grounds of the royals and nobles, not fortresses, not fortresses और recreational centers. ऐसा नहीं है. And ये कहीं ना कहीं ये confuse करने के लिए ना, because we relate to these old kingdoms as more based upon the wars that they have fought, not the burial grounds that they have created, except for IBC का हम burial grounds के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, या फिर the techniques that they use उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी है, but not for others. We focus more upon the achievements and the wars that they have fought, and ये कहीं ना कहीं उसी को घुमाने के लिए क्वेश्चन बनाया गया. अगर 38 की बात करी जाए, देखो अगेन इट्स अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, बट इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जाननी है कि यहाँ पे इन्होंने एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन दिया है. देखो I did not know this in the exam, but I was able to solve this because of the aptitude that I had built. मैं यहाँ पे better production, better nutrition और better environment जो मैंने देखा, these are two complementary statements, and ये दोनों एक दूसरे को इतना similar थे, except for better ocean and better life. I was confused between these two. But अगर देखा जाए यहाँ पे सिर्फ ocean की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे resilient livelihood की बात कर रहे हैं, blue transformation की भी बात कर रहे हैं, and marine and ocean issues. Not just that, they're talking about in broader sense मतलब better life की बात करते, because production, environment और nutrition को combine करते हुए. अगर देखा जाए strategic forum है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है इसका FAO का जो स्टार्ट हुआ है 2022 से 31 तक 4 बेटर्स के लिए, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर लाइफ, लीविंग नो वन बिहाइंड. ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है स्पेसिफिक टू एक्वाटिक एक्वाटिक फूड सिस्टम एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर्स. ठीक है. सो ये जो टर्मिनोलॉजी का ये जो स्वैप है जिसमें हम कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ट्रैप डाला गया. नेक्स्ट ये लेक तुर्कना लेक जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है. ऑल्सो अल्कलाइन सोडा लेक ग्लोबली नॉर्दर्न केनिया में पाया जाता है, टू बी स्पेसिफिक, नॉट साउथ सुडान. ये कंफ्यूज हो सकते हैं हम एग्जाम में, बट दैट इज देयर. ऑल्सो ये जेडा है यूनेस्को हेरिटेज साइट, प्रॉपरली इसे जेडे सी भी बोलते हैं. और एक्चुअली में ये जो मिस्टेक की गई है ये भी एक बहुत जोग्राफिकल बेस्ड मिस्टेक जो करते हैं कि इसको इससे कंफ्यूज कर देते हैं, वो करी गई है यहाँ पे, बहुत अच्छे से करी गई है. लास्ट वाला पॉइंट देखा जाए, देखो लास्ट वाले में अगर हम और देखें तो ये हमारा फर्स्ट और सर्टिफाइड क्रोनोलॉजी देखना चाहते हैं, बिकॉज उत्तराखंड का ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ नॉट द फर्स्ट वन, बट यहाँ पे पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट है. नेक्स्ट वाला जो है ये रिसर्च कोलैबोरेशन है, सर्टिफाइड फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है. एंड ये सिक्किम वाला जो है ये बाद में हुआ है, नॉट द फर्स्ट वन. ये जो खासी हिल्स कम्युनिटी रेड डी प्लस प्रोजेक्ट है, ये 2013 का है. इंडियाज फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड रेड डी प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया. ये खासी ट्राइब जो खासी हिल्स इसीलिए बोला गया है बिकॉज यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, खासी ट्राइबल किंगडम है, वही इसको प्रोटेक्ट करता है, रिस्टोर करता है. ऑलमोस्ट 27,000 hectares of cloud forest, sacred groves and watersheds, and while channeling carbon credits revenue back to local communities. So ये बहुत एक बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट है. इट्स अ गुड एग्जाम्पल फॉर एनवायरनमेंट के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. लेकिन ये कहीं ना कहीं एग्जाम में फर्स्ट जानना इज समथिंग जो क्रोनोलॉजी वाइज हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट दैट्स समथिंग वी नीड टू फोकस मोर अपॉन. वी नीड टू फोकस अपॉन whenever we are studying current affairs जब भी पढ़ रहे होंगे तो हमें ध्यान में देना है कि if something a new thing has come, let's look about the history of it. थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं उसकी, so that we have the chronology with us, because ये chronology based ही अगर हमारा पहला यही है, they have not asked second or third, they have asked first one, and ये ट्रेंड भी देखा गया है कि वो फर्स्ट वाला ही पूछते हैं, फर्स्ट या फिर रिसेंट वन. तो उस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और रिसेंट वन का थोड़ा ध्यान रखेंगे whenever we are doing. इन टर्म्स ऑफ लर्निंग्स अगर हम यहाँ देखें, हमें यहाँ पे ओल्ड पैटर्न ही दिख रहा है. दिस इज ओल्ड पैटर्न, दिस इज अगेन ओल्ड पैटर्न. ये ओल्ड पैटर्न है, ये भी ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न है और ओल्ड पैटर्न है. ये तो PYQs का एक्सपेंशन है. दिस इज PYQ रिपीट. दिस इज करंट अफेयर्स डिराइव्ड.
ये वाला पार्ट जो है वो एनवायरनमेंट से है, एनवायरनमेंट में स्पीशीज पूछी जाती है उसके बेसिस पे। एंड ये जो पांचों क्वेश्चन आई कैन सी एक्सेप्ट फॉर द 40th वन, हम सब में कहीं ना कहीं जो ट्रिक्स ऑफ यूपीएससी, नॉट जस्ट ट्रिक्स इज अ रॉन्ग वर्ड, बट द लैंग्वेज ट्रैप्स ऑफ यूपीएससी जो देखा जाता है वो यहाँ पे पूरा विजिबल है। ये सारी जगह पे B830, यहाँ पे हमने एंडेमिज्म का देखा, यहाँ पे हमने देखा कि इट इज ट्राइंग टू कंफ्यूज बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स एंड कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे हमने देखा कि क्लोज सेंटेंसेस, सिमिलर सेंटेंस ट्रैप इन्होंने क्रिएट किया। यहाँ पे अगेन जोग्राफिकल लोकेशन चेंज कर दी इन्होंने। और जो लास्ट वाला है उसमें हम देख रहे हैं कि दिस इज क्रोनोलॉजी, दिस इज बिट डिफरेंट। सो ओवरऑल ये हमने जाना इसके बारे में कि ओल्ड पैटर्न अभी भी एग्जिस्ट करता है एंड वी नीड नॉट चेंज। द ओनली थिंग इज द डेप्थ विच वी आर गोइंग फॉर, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग फॉर deeper understanding of each and every topic that we are studying, and we are building our aptitude. That's all for this video. I'll see you in the next one. Tata, bye bye.